ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਇਸ ਮਸੀਹਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਯੈਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਨਿਮਾਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਚੁਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਮਰੀਅਮ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੀਨ ਤੇ ਹੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੰਨੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਯੈਸ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਯੈਸ, ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਆਣ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਵੰਦਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੌਲੀਡੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈਏ ਦੁਆ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ
ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ जी प्रभु। क्योंकि जीवन की रोटी भी तुसी हो, जीवन का द्वार भी तुसी हो, यस मुक्ति का द्वार भी तुसी हो। जी प्रभु। प्यारे प्रभु, असी हर गल की शुक्रगुजारी करते हैं। यस इस सभा के उत्ते तुहाडी बरकत मंगदे हां, तुहाडी दया मंगदे हां, तुहाडा रहम मंगदे हां। साडे सारियां दे सिरां ते अपना मेहर भरिया हाथ रखना ते इस सभा नूं आप ही संभालना। ये सब कुछ असी मंगदे हां अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु जी दे इकलौते नाम दे विच। आमीन आमीन आमीन। आओ मिलके खुशियां भरिया गीत गाइए। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। हालेलुया। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आँखों का तारा, आया चरनी में राज दुलारा। मरियम की आँखों का तारा, आया चरनी में राज दुलारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। आया दुनिया में यीशु जलाली, ये शुभ संदेशा आया। आया दुनिया में यीशु जलाली, ये शुभ संदेशा आया। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। हम भी आकर नजरें चढ़ाए, देखे बाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजराने चढ़ाए, देखे बाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजराने चढ़ाए, देखे बाग मसीह को दिखाए। भूखे प्यासों का वो ही सहारा, आया चरनी में तारनहारा। भूखे प्यासों का वो ही सहारा, आया चरनी में तारनहारा।
सहारा, आया चरण में तारन हारा, आया चरण में तारन हारा, आया चरण में तारन हारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलके एक और भजन गावांगे। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, क्योंकि उन्होंने शांति का राजकुमार किया जाता है, प्रिंस ऑफ पीस किया जाता है उन्होंने। आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। आओ मिलके गीत करें। जिस समय धरती ते जन्म लिया सी, आज दुआ करिए कि वो साडे दिल विच ही आन, पवित्र आत्मा दे रूप विच साडे च हैगे ने, लेकिन वो जगह साडे अंदर पूरी तरह आ गए तो साडी जिंदगी बदल जाएगी। आओ अपने दिल नूं, अपनी जान नूं, अपनी रूह नूं उन्हां दे हत्थ ही देइए, ताकि वो आन, उन्हां दा कंट्रोल साडे उत्ते होए, साडा समर्पण उन्हां कोल होए ते ओही सानूं चलाण ते उन्हां दे पिछे असीं चलीए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर सवारा, तूने आकर फिर सवारा, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करें मिलकर हम जहां भी रहे। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करें मिलकर हम जहां भी रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, तेरा करे प्रचार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मूल्यवान नहीं पसंद तुझको।
क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबान नहीं पसंद तुझको, कर दे ऐसा वर दे ऐसा, कर दे ऐसा वर दे ऐसा, जीवन करे निसार तेरा हो अभिषेक, अमृत राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੋਗੇ। प्रभु जी के पावन पवित्र सबसे ऊंचे नाम में आपको बरकत मिले। आज क्रिसमस का जो त्योहार है, जो क्रिसमस का खास दिन है, आप सबके लिए बरकत भरा हो। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, मोना की तरफ से और प्रभु जी की कलीसिया हिज प्रेयर हाउस इंटरनेशनल चर्च की तरफ से आपको इस बड़े दिन की, इस शुभ दिन की, इस पवित्र दिन की, इस हॉलिडे की खूब बरकत देता हूं। वर्ल्ड वॉर II के बारे में आप जानते होंगे। 1945 के आसपास ये वार हुई थी, वर्ल्ड वॉर II। पूरे देश के, पूरे संसार के जो देश थे वो दो भागों में बंट गए थे, तो उनमें आपस में ये वर्ल्ड वॉर युद्ध हुआ था। एक तरफ थे जापान, इटली और जर्मनी, इन सारी फोर्सेस को एक्सिस कहते थे, और दूसरी तरफ इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सारे थे। खूब घमासान लड़ाई हो रही थी, बहुत से फौजी मारे गए, और जापान ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पर हावी हो रहा है। अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मारे गए। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में उनके आर्मी कमांडर भी थे, चीफ कमांडर भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, और काफी और बड़े ओहदे वाले लोग थे। वहां पे आर्मी कमांडर ने अमेरिका के प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट की कि इस लड़ाई को जीतने के लिए एक ही तरीका है, आप हमें और फौजी दें, हमें और फौज चाहिए, हमें और सिपाही चाहिए। इस पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उनसे एक बात पूछी, क्या इसकी कोई गारंटी है कि और फौजी भेजे जाएं और वो भी इस तरह वीर गति को प्राप्त ना हो? तो आर्मी कमांडर का सिर झुक गया। इस पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उनको एक और बात बताई। बोले, ऐसा करते हैं, लेट अस सेंड आवर लिटिल बॉय। कहते, आओ अपने छोटे बॉय को भेजें, छोटे बालक को भेजें। माय ब्रदर सिस्टर, वो लिटिल बॉय कुछ कोई और नहीं था, वो एटम बम था जो अमेरिका ने बना लिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। और ऐसा ही हुआ। इतिहास गवाह है कि 15 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिका ने वो एटम बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराया। सारे शहर वो खत्म हो गए। ऐसा उस वार में पासा पलटा कि अंत में जापान और उसके साथ जो जर्मनी था और इटली था, हम सब की हार हुई। और दूसरी तरफ जिस तरफ अमेरिका था, इंग्लैंड था, कनाडा था, उनकी विजय हुई। माय ब्रदर सिस्टर्स, लिटिल बॉम्ब ने बिल्कुल हालात बदल दिए और सब कुछ दुश्मन को खत्म कर दिया। आज वही दिन है। आज से 2000 साल पहले इसी दिन परमेश्वर ने हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक ऐसा छोटा बच्चा भेजा था, जिसकी वजह से शैतान की हर ताकत खत्म हो चुकी है और हमें मौत पर विजय मिल गई है। उस छोटे बच्चे ने आके ऐसा कमाल किया कि पूरी की पूरी लड़ाई जीत ली, क्रूस पर अपनी जान दे के। हमारे लिए खुशी का दिन है। इट इज ए जॉयस मोमेंट फॉर अस।
Let us rejoice and be glad for the Lord. आइए प्रभु में खुश हों। My brother and sister, ये वो दिन है क्रिसमस का दिन जिस दिन इन्फिनिटी बिकेम इन्फेंट, यानी कि जो अनंत काल से थे प्रभु यीशु मसीह वो छोटा बच्चा बन के इस धरती पर आए। जरा सोच के देखिए वो परमेश्वर हमें कितना प्यार करते थे कि उन्होंने इंसान का शरीर धारण किया और इस धरती पे आए। माय ब्रदर सिस्टर्स, उनका नाम उनके आने से पहले ही बता दिया गया था। मतलब माता मरियम को बोला गया था कि उनका नाम इमैनुएल रखना, इसका मतलब है गॉड इज विद अस। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये सच है, आज परमेश्वर हमारे साथ है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, दिस इज ए फैक्ट। आज क्रिसमस का जो सीजन चल रहा है जिसमें हर तरफ चहल पहल है, आप देखें लोग बाहर घूम रहे हैं, घरों के आसपास, बिल्डिंग के आसपास, और जो सरकारी बिल्डिंग के आसपास है वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं, बड़ा खुशी का माहौल बना हुआ है और इस माहौल को वो लोग हॉलीडे के रूप में मना रहे हैं। और माय ब्रदर सिस्टर्स, हमारे लिए जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं, ये हॉलीडे नहीं है, होलीडे है। ये हमारे लिए पवित्र दिवस है। इन दिनों वो लोग भी जो प्रभु को नहीं जानते, जानना चाहते हैं, उनकी कहानी अक्सर आपको रेडियो टीवी में सुनाई दी जाती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन की गलतफहमी में हैं, उनको बुरी बातें पता नहीं, खासकर जो विश्वास में नहीं है। लेकिन बहुत से मेरे विश्वासी बहन भाई भी ऐसे हैं जिनको ये दिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में याद है। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऐसा हो सकता है कि इस दिन की वजह से ये जो बातें आप सुन रहे हैं आपके मन में क्लियर पिक्चर ना हो, शायद आपके पास कंप्लीट इस दिन के ज्ञान ना हो। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, दिस डिस्कशंस जो आजकल आप सुन रहे हैं कम्स विद सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आज प्रभु हमें वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर रहे हैं अपने इस कलाम के द्वारा। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते, उनके पास इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट नॉलेज है इस दिन के बारे में। और बहुत से हम में से जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, आधा ज्ञान है। तो आइए इस ज्ञान को पूरा करते हैं। हमें शायद इतना पता है, ही वाज सन ऑफ गॉड, ही केम ऑन दिस डे एंड ही वाज क्रूसिफाइड ऑन गुड फ्राइडे। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। तो आज प्रभु अपने इस संदेश के द्वारा हमें वही सारी बातें बताने जा रहे हैं। तो आज के प्रभु का जो ये संदेश है उसका टाइटल है द ट्रूथ ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की सच्चाई। आज कम से कम 6 ऐसी बातें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे, जो शायद पता भी हो, शायद ना भी पता हो, जो हमें इस दिन की गहराई के बारे में बताती है और जो हम उन लोगों को बता सकते हैं जिनके पास पूरा ज्ञान नहीं है या जिनके पास इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो आइए इस ज्ञान को बांटते हैं, देखते हैं पहली बात कौन सी है। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज दैट, हालांकि क्रिसमस वाले दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, बट ही एग्जिस्टेड मच बिफोर दैट। ही वाज ऑल्दो कंसीव्ड ऑन दिस अर्थ, but he existed many centuries and years before that. My brothers and sisters, क्रिसमस का वो दिन है जिस दिन प्रभु ने माता मरियम के शरीर से, कोख से इस धरती पर जन्म लिया। But he did not originate on his birth. He was already there with God much before that. The personhood, the character and the personality of Jesus the Nazareth existed much before the man of Jesus Christ came on this earth. My brothers and sisters, प्रभु का शरीर जो उन्होंने शरीर धारण किया वो इस दिन हुआ, लेकिन उससे पहले वो एग्जिस्ट करते थे। बहुत से ऐसे जूस हैं जो इस बात को विश्वास नहीं करते, बहुत से सुनने वाले भी इस बात को शायद विश्वास ना करें, लेकिन प्रभु ने खुद इस बात की गवाही दी थी। जब प्रभु ने ये बात यहूदियों के सामने की थी तो क्या हुआ था, एक हलचल मच गई थी। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 56, यूहन्ना अध्याय 8 और पद 56। तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम मेरा दिन को देखने की आशा से आनंद से भर गया था। जो अब्राहम थे, he rejoiced, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. जब उन्होंने ये बात कही तो जो जूस थे
वो नाराज हुए, वो कहते हैं यू आर नॉट येट 50 years old एंड यू से यू हैव सीन अब्राहम। आप तो 50 साल से भी छोटे हो और आप कहते हैं आपने अब्राहम को देखा है। तो प्रभु जी ने बोला वेरी ट्रूली आई टेल यू बिफोर अब्राहम वॉज बॉर्न आई एम। कहते हैं तुम्हें सत्य कहता हूं अब्राहम से पहले मैं ही हूं। माय ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु उस दिन से जिस दिन से परमेश्वर है उनके साथ थे। सिर्फ इसी तरह जब प्रभु जी क्रूस वाला दिन आ रहा था और वो अपने शागिर्दों के साथ थे तो उन्होंने एक प्रार्थना की थी। इस प्रार्थना में भी इस बात की गवाही मिलती है। ये प्रार्थना है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 24, यूहन्ना 17:24। फादर आई वांट दोज यू हैव गिवन मी टू बी विद मी वेयर आई एम। हे परम पिता, जो लोग तूने मुझे सौंपे हैं मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि वे मेरी उस महिमा को देख सकें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि सृष्टि की रचना से पहले ही तूने मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। So this tells us that Jesus existed even before the existence of this creation. वो परमेश्वर के साथ थे शुरुआत से ही। क्रिसमस वाले दिन सिर्फ उन्होंने शरीर धारण किया और माता मरियम की कोख से पैदा हुए। सेकंड बात, वो हालांकि एक दुनियावी अर्थली माता से पैदा हुए, बट हिज फादर वाज हेवनली फादर। परमेश्वर पिता ही उनके पिता थे। वो किसी मर्द और किसी औरत के सुमेल से मिलने से पैदा नहीं हुए थे। उनके पिता परमेश्वर पिता थे, इसलिए उनको हम सन ऑफ गॉड कहते हैं। आपको याद होगा जब माता मरियम कुंवारी थी तो स्वर्गदूत ने आके उनको बोला था कि परमेश्वर की कृपा आके हुई है, आपके घर एक बेटा जन्म लेगा, उसका नाम इमैनुअल रखना। तो उन्होंने उससे कहा था कि मैं तो किसी को जानती नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। तो उसने क्या बोला था, ये इसका जिक्र आता है बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 35 में। लूका की इंजील अध्याय 1 वर्स 35 में, द होली स्पिरिट विल कम ऑन यू and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. So दूत ने कहा था तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझे उसकी छाया में ले लेगी। इस प्रकार जन्म लेने वाला पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So my brothers and sisters, Jesus although was conceived in the womb of a mother, but he was conceived by the power of होली स्पिरिट। इसीलिए माय ब्रदर एंड सिस्टर, एडम से चूंकि वो पैदा नहीं हुए थे, वो इंसान की औलाद नहीं थे, इस वजह से वो सिनलेस थे। जो भी आदम की औलाद से जैसे हम पैदा हुए हैं, हम सिनलेस नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप रहित हैं। इसी वजह से उनकी कुर्बानी दी गई, क्रूस पे उनको कुर्बान कर दिया गया गुड फ्राइडे वाले दिन, ताकि वो एक हमारे लिए सेवियर बन सके, हमारे बचाने वाले बन सके। Since he was conceived through the power of the Holy God, through the Holy Spirit, he is totally qualified to be our Savior. तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर हैं, खुद ही परमेश्वर के बेटे हैं। शायद आज इस बात सुन के कई लोग हंसेंगे जिनको इस बात पर विश्वास नहीं है। वह कहेंगे कैसे ऐसे हो सकता है कि एक ही पर्सनैलिटी गॉड भी हो और गॉड का बेटा भी हो। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर की संतान है, इसी तरह वो परमेश्वर भी है। इसकी पहली झलक मिलती है प्रभु के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल के पहले बुक के पहले चैप्टर में ही। जब परमेश्वर पिता ने ये सारी कायनात, सारी सृष्टि साजी, तो उन्होंने जहाँ बाकी चीजें बनाई वहाँ इंसान को भी बनाया। और जब उन्होंने इंसान को बनाया तो उन्होंने एक बात बोली थी। क्या बोला था? सॉरी, बुक ऑफ जॉन में पढ़ते हैं। बुक ऑफ जॉन में लिखा है चैप्टर 1 वर्स 1, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। शुरुआत में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड मेड हिज ड्वेलिंग अमंग अस। यही शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके रहा
We have seen his glory. हमने उसकी महिमा देखी है. The glory of the one and the only Son who came from the Father, full of grace. So एक तरफ तो हमें ये पता लगता है कि वो शुरू में ही परमेश्वर के साथ वचन के रूप में थे, वही परमेश्वर थे, यही परमेश्वर देहधारी हुआ. My brothers and sisters, he came to the earth as a visible man, displaying the image of the invisible God. My brothers and sisters, प्रभु ने खुद अपने वचन में अपने मुंह से कई बातें कही हैं जो इस बात की गवाही देती हैं, जो उन्होंने कंफर्म किया अपनी एग्जिस्टेंस को कि मैं कौन हूँ. जैसे अगर आप बुक ऑफ जॉन में जाके देखें तो उन्होंने कहा है that he and the father are one. उन्होंने कहा मैं और मेरा पिता एक है. बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 में उन्होंने बोला था. इसी तरह बुक ऑफ जॉन यूहन्ना की इंजील में चैप्टर 12 में उन्होंने कहा था whoever saw or knew me has seen and known the father. जिस किसी ने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देख लिया है, जान लिया. So he was God the Father and he was God the Son also. My brothers and sisters, चौथी बात, जो कुछ भी रचा गया है, चौथी बात यह है कि जो कुछ भी रचा गया है, that is created by the Father and the Son. जो कुछ भी इस धरती पे आपको नजर आता है, इस संसार में, ब्रह्मांड में आपको नजर आता है, वो उन्होंने रचित किया, उनके बगैर कुछ भी रचित नहीं हुआ. इस बात की गवाही हमें मिलती है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में. जैसे परमेश्वर ने जब धरती बनाई, सूरज आकाश बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पक्षी बनाए, जानवर बनाए, उसके बाद उन्होंने इंसान को बनाया. और जब उन्होंने इंसान को बनाया तो उन्होंने एक बात बोली थी. क्या बोला था? बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति 1:26. लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर ओन इमेज इन आवर लाइकनेस. परमेश्वर ने कहा था आओ हम मनुष्य बनाएं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएं. और ब्रदर सिस्टर, उस समय परमेश्वर किससे बात कर रहे थे? उन्होंने कहा लेट मी मेक नहीं बोला, उन्होंने कहा लेट अस. तो किससे बात कर रहे थे? माय ब्रदर सिस्टर, उस समय सिर्फ पेड़ पौधे थे या एंजल्स थे सारी सृष्टि में? कहीं भी जिक्र नहीं आता कि उनका कोई हाथ है इंसान को बनाने में, सृष्टि को बनाने में. लेकिन उस समय यही गवाही मिलती है इस वचन से कि वो गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली स्पिरिट से बात कर रहे थे. सो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया. इसी की गवाही एक और जगह मिलती है बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16 एंड 17 में. कुलसियों अध्याय 1 पद 16 और 17 में. पद 16 में लिखा है क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और धरती पर है उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है. कुछ भी जो चाहे दिखने वाला है और चाहे अदृश्य है, चाहे सिंहासन हो, चाहे राज्य, चाहे कोई शासक हो, चाहे अधिकारी, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है और उसी के लिए रचा गया है. सो एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय हिम, एवरीथिंग क्रिएटेड फॉर हिम. सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब कुछ उन्होंने ही बनाया है. जरा सोच के देखें, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने सारा कुछ खुद रचा है, ये सृष्टि खुद रची, ये धरती खुद बनाई, वो प्रभु परमेश्वर पिता हमसे इतना प्यार करते थे कि वो इस धरती पे, जिस दो धरती उन्होंने खुद बनाई थी, इस पे आके उन्होंने जन्म लिया और हमारे बीच में आके रहे. माय ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ sacrificial love for mankind by Lord Jesus. Hallelujah. पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह जी का जो नाम है, ऐसा नाम कोई और नहीं है. किसी और नाम में मुक्ति नहीं है. ये बात हम आज सब जान लें. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन में इसकी गवाही मिलती है. प्रभु ने खुद कहा था, आई एम द लाइफ, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ. No one comes to the Father except through me. My brothers and sisters, प्रभु के वचन में इस बात की गवाही मिलती है. बुक ऑफ एक्ट्स में भी बहुत जगह इस बात की गवाही मिलती है, लेकिन एक वचन आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ. बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12. प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12. Salvation is found in no one else. उद्धार किसी और नाम में नहीं है.
For there is no other name given under heaven to the mankind by which we must be saved. आकाश के नीचे लोगों के द्वारा कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। माय ब्रदर एंड सिस्टर, शायद ये बात बहुत सारे मेरे सुनने वालों को चौंकाने वाली लगे, पर यही सच है। मुक्ति, उद्धार एक ही नाम से है। तभी उनकी मुक्ति हमें मिल सकती है जब उनके नाम को हम अपनाएं, उनके पीछे चलना शुरू करें। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु का नाम, प्रभु का नाम बेकार में लेते हैं। अक्सर मुंह में ओ जीसस ऐसे निकल जाता है, कोई गलत बात होती है तो ओ जीसस निकल जाता है, पर ये ऐसा नाम है जिस नाम में ही मुक्ति है। प्रभु के वचन में लिखा है, सब ने इस नाम के नीचे आना है, सब ने इस नाम के सामने घुटने टेकने हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप आते हैं छठी बात पे। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, जन्म लिया, फिर उनका बलिदान हुआ और फिर वो स्वर्ग चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं पे रहेंगे हमेशा। प्रभु का वचन ये गवाही देता है उनकी सेकंड कमिंग भी होगी, वो दोबारा इस धरती पे आएंगे। माय ब्रदर सिस्टर, उनके जन्म की, उनके क्रूसिफिकेशन की बहुत सारी भविष्यवाणियां ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती हैं जो पूरी हो चुकी हैं। लेकिन ऐसी एक और बात भी है कि वो दोबारा इस धरती पे आएंगे, उनकी सेकंड कमिंग होगी। लेकिन इस बार वो एक असहाय बालक के रूप में इस धरती पे नहीं आएंगे, मैरी और मार्था के बच्चे की तरह इस धरती पे नहीं आएंगे। इस बार वो जब आएंगे तो उनकी महिमा को पूरा संसार देखेगा। बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 7, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 7। लुक, ही इज कमिंग विद द क्लाउड। देखो, वो बादलों के साथ आ रहा है, बादलों के साथ मसीह आ रहा है। हर एक आंख उसका दर्शन करेगी, उनमें वे भी होंगे जिन्होंने उसे बेधा था, और धरती के सभी लोग उसके कारण विलाप करेंगे। हाँ, निश्चय पूर्ण ऐसा ही होगा। आमीन, हालेलुया। माय ब्रदर एंड सिस्टर, पवित्र बाइबल में हमें 3 बातों का जिक्र मिलता है, रैप्चर्स, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन एंड द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। माय ब्रदर एंड सिस्टर, आपने इस बारे में पिछले दिनों पढ़ा भी है। कलाम के दौरान प्रभु ने मुझे संदेश भी दिया था। रैप्चर वो दिन है जब प्रभु जी आएंगे दोबारा, लेकिन धरती पे नहीं आएंगे, बादलों तक आएंगे और सब मसीह उठा लिए जाएंगे। जो प्रभु में मर चुके हैं लेकिन अभी कब्रों में लेटे हुए हैं, पहले वो उठा लिए जाएंगे। फिर वो लोग जो मसीह हैं लेकिन धरती पे जिंदा, फिर वो लोग उठाए जाएंगे और प्रभु उनको लेके अपने साथ स्वर्ग चले जाएंगे। उसके बाद इस धरती पे 7 साल का ट्रिब्यूलेशन या विपता आएगी, कठोर यातनाएं आएंगी। इसीलिए उन कठोर यातनाओं से पहले मसीहियों को उठा लिया जाएगा। लेकिन जब ये 7 साल की कठोर यातना आएंगी, उसमें बहुत सारे अत्याचार होंगे। एंटी क्राइस्ट आएगा जो लोगों को अत्याचार करेगा, जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं उनको तसीह देगा। लेकिन उसके बाद प्रभु की सेकंड कमिंग होगी। इस बार वो सेकंड कमिंग जो होगी डिफरेंट होगी। ही विल कम सडनली एंड नो वन विल मिस इट। प्रभु स्वर्ग के फाटक खोलेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक राजा की तरह घोड़े पे सवार, सफेद घोड़े पे सवार एक विजयी की तरह आएंगे और उनके पीछे पीछे स्वर्ग की सेना उनके साथ होगी। उस सेना में एंजल्स होंगे, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, हम सब भी होंगे, क्योंकि हम तब तक उठा लिए गए होंगे और स्वर्ग में प्रभु के साथ होंगे। एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी और वंस फॉर ऑल बुराई पे अच्छाई की जीत होगी और प्रभु इस धरती पर 1000 साल के लिए राज करेंगे। यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया था, वो भी ये सब कुछ देख सकेंगे और वो भी जान जाएंगे ही इज किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। ये 6 ऐसे बातें हैं, मैं चाहता हूँ मेरे सारे विश्वासी भाई इन बातों को याद रख लें, ताकि कभी भी किसी गैर विश्वासी के साथ या ऐसे विश्वासी के साथ जिसके मन में कोई गलतफहमी है, ये बातें जिक्र कर सके। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंत में प्रभु का मैसेज हमारे लिए यही है, हु डू यू थिंक जीसस इज। जो आप इस समय सुन रहे हैं इस वचन को, आप क्या सोचते हैं कि प्रभु यीशु कौन है? क्योंकि जो आप सोचते हैं, समझते हैं,
वही आपको उनसे मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि वो चंगाई देने वाले परमेश्वर है तो सिर्फ चंगाई मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि वो प्रोटेक्शन देने वाले परमेश्वर है तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। पर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, he was not only God, he is not only son of God, he is many things to us। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, he is bread of life, वो इस जीवन की रोटी है। जैसे दुनियावी रोटी हमें थोड़ी देर के लिए तसल्ली देती है, फिर भूख लग जाती है, लेकिन वो ऐसी स्पिरिचुअल ब्रेड है जिसे खा के हमारी स्पिरिचुअल प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी। इसी तरह प्रभु का वचन कहते हैं, he is a living water, वो जिंदा पानी है, ऐसा जल है जिसे पीकर हमारी स्पिरिचुअल प्यास बुझ जाएगी। ही इज लैम्प ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के वो मेमने हैं। जैसे पुराने जमाने में जानवरों की बलि देके हमारे पाप ढके जाते थे, ऐसे वो ऐसे लैम्प हैं, ऐसे मेमने हैं जो निष्पाप थे, जिनकी कुर्बानी देके हमेशा के लिए हमारे पाप खत्म हो गए, साफ हो गए, धुल गया, हम सिनलेस हो गया और हम राइचियस हो गए, हम धर्मी हो गया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, let us not be confused with his identity। आज क्रिसमस के इस दिन प्रभु की जो सच्चाई है उससे मुंह ना मोड़े, ना ही कंफ्यूज हो, क्योंकि जिन्होंने ये कंफ्यूजन रखा है वो उनसे कुछ भी नहीं ले सके थे। आपको याद होगा नाजरत के लोग तो ये कहते थे, ये वही है जो कारपेंटर का बेटा है, यही वही है जिसकी माता का नाम मरियम है, ये वही है जिसके भाइयों के नाम जेम्स है। और आप जानते हैं प्रभु के वचन में लिखा है, नाजरत शहर में एक भी मौजूदा नहीं हुआ था, कुछ भी वहां पे नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उन पे विश्वास नहीं किया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इफ यू सी हिम इन फ्लैश यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। माय ब्रदर्स सिस्टर, दे डिड नॉट सा हिम गॉड इन फ्लैश, उन्होंने उनको सिर्फ शरीर के रूप में देखा, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये परमेश्वर है जो शरीर धारण करके आ गया। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे फिलासफर हैं, बहुत से ऐसे बिलीवर हैं जो उन्हें एक अच्छा इंसान मानते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट मानते हैं, एक अच्छा नबी मानते हैं, एक अच्छा टीचर मानते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, दे डिड नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम हिम बिकॉज दे वर नॉट राइट। उनकी जो सोच थी, समझ थी, वो सही नहीं थी। ही डिड नॉट केम जस्ट टू मेक ए गुड एग्जाम्पल, वो इस धरती पे इसलिए नहीं आए कि एक अच्छा एग्जाम्पल बने। ही केम एज आवर रिडीमर, he came as our righteousness, he came as our shepherd। एक हमारे शेपर्ड की तरह आए ताकि हम जो शीप्स हैं उनको वो भेड़िए से बचा सके। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से पूछा था कि आप क्या सोचते हैं मैं कौन हूँ? तो पतरस ने कहा था, आप परमेश्वर के मसीह हो। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु हमसे भी यही प्रश्न कर रहे हैं, हम क्या उनको जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या प्रभु के मसीह हैं? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हमको वो सोचते हैं जो प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर थे, परमेश्वर के पिता थे, then he will do mighty works in our life, mighty works in our life। हालेलुया। आज के शुभ दिन पे मैं आपके साथ आखिरी वचन बांट के आज का ये कलाम खत्म करना चाहता हूँ। जब शहर के बाहर भेड़ें चराने वाले बैठे थे, उनको खबर आई थी, उनको स्वर्गदूत ने आके संदेशा दिया था, आई ब्रिंग यू गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय दैट विल बी फॉर ऑल द पीपल। मैं आपको एक अच्छी खबर, खुशी की खबर देने जा रहा हूँ जो सारी मानव जाति के लिए। आज क्रिसमस का ये दिन सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, ये सारी मानव जाति के लिए ये खुशखबरी है। आइए इस खुशखबरी को समझने की कोशिश करें। ये खुशखबरी क्या है? ये खुशखबरी ये है कि यू मैटर टू गॉड। आप जो सुन रहे हैं, चाहे प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं, प्रभु के मन में आपकी एक अहमियत है। यू मैटर टू गॉड, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, व्हाट इज गुड इन यू, व्हाट इज बैड इन यू एंड व्हाट इज अगली इन यू। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबके बावजूद हमसे प्रेम करते हैं, बिकॉज ही केयर्स अबाउट अस, ही वांट्स टू सेव अस। गॉड इज फॉर अस, गॉड इज नॉट अगेंस्ट अस। यही हमारे लिए खुशखबरी है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर इसलिए भेजा था कि उनको देखकर
हम जान सकें कि हमारे परमेश्वर पिता कैसे हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर की तरह छुप के बैठे हुए ये नोट नहीं कर रहे कि हम क्या गलती करें और उनको सजा मिले। वो उस बेटे की तरह जो इस धरती पर आया, जो हर एक के लिए एक चंगाई लेके आया था, जिसने हर एक को चंगाई दी, हर एक को मुक्ति दी, जिसने उनके पीछे चलना शुरू किया। इसलिए हमारे लिए क्रिसमस का त्योहार एक होली डे है, एक पवित्र दिवस है, एक हॉलीडे नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी सुन रहे हैं, गैर मसीही और मसीही, सबको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए ये जो फेथ है ये एक रिलीजन नहीं है, ये एक विश्वास है, ये एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विद द गॉड। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज क्रिसमस के इस खास दिन हम याद करें कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहते हैं, गॉड इज टेलिंग अस, आई वांट टू रिलेट टू यू। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ। आई वांट यू टू नो मी मच मोर देन आई वांट टू नो यू। मैं चाहता हूँ तू भी मुझे जाने जिस तरह मैं तेरे को जानता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता अपने बारे में, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। यही खुशखबरी है, यही ग्रेट न्यूज है, और यही क्रिसमस की सच्चाई है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक होर खुशियां भरिया गीत लैके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਨੱਚਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਮ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। मिल के गीत गाइए। ਨੱਚਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੱਚਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਮ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਮ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। आज दिस क्रिसमस दी सर्विस विच ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਸੇ ਆਮੀਨ 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 ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ Merry ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ Christmas. ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟੂ ਯੂ ਆਲ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु यीशु जिंदा है God bless you. God bless you. God bless you.